Okay, dear students, today we are discussing about the Heaviside Bridge that is used for the measurement of the mutual inductance. So first we will see that what is the self-inductance, what is the mutual inductance, and then we see the balance equation for the Heaviside Bridge and its phasor diagram. So first, what is the self-inductance? As here shown, जब हम किसी फॉर्मर पर कॉइल्स बाउंड कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस है that is generated. Inductor generate an induced EMF within itself as a result of the changing magnetic field around its own turn. जब इंडक्टर में इसकी टर्न में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ड्यू टू द करंट फ्लो, then it generate the EMF. When this EMF is induced in the same circuit in which current is changing, this effect is called the self inductance. तो हम इस इफेक्ट को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. What is the mutual inductance? When the EMF is induced into an adjacent coil situated within the same magnetic field. जब दो कॉइल एडजेसेंट आपस में सेम फॉर्मर पर प्रेजेंट हों तो then mutual inductance is generated. This EMF is said to be induced magnetically, inductively or by mutual inductance, और that is denoted by symbol M. Mutual inductance को हम symbol M से denote करते हैं. When two or more coils are magnetically linked together by a common magnetic flux, they are said to have the property of the mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जैसा कि ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सभी में ये यूज होता है. वी कैन सी हेयर द म्यूचुअल इंडक्टेंस. सपोज दीज आर द टू कॉइल्स, mutually coupled coils, and due to one coil having the inductance L1 and another coil having the inductance L2, these are mutually connected. The lines of the magnetic flux, when current flow in the primary, then lines of the magnetic flux generated, due to which the mutual inductance created between these two coils. Same situation is here, the distance is large between the two coils. The mutual inductance M that exists between the two coils can be expressed in terms of self-inductance of each coil. M square is equal to L1 L2. Here M is the mutual inductance, L1 and L2 are the self-inductance of the coils. Or we can write M is equal to under root L1 L2 Henry. तो वॉट हैविंग द हैवी साइड ब्रिज, हमने इसको क्यों देखा, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज द मेजरमेंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस विद द हैवी साइड ब्रिज. तो हैवी साइड ब्रिज मेजर द म्यूचुअल इंडक्टेंस in terms of the known self-inductance. Same bridge, slightly modified, was used by Campbell to measure the self-inductance in terms of the known mutual inductance. तो या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं हेवी साइड ब्रिज में विद द यूज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 L2, एंड कैम्पबेल यूज द मॉडिफाइड इसको किया और उसने सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम के टर्म्स में. ये डायग्राम दैट इज शोन हियर, द डायग्राम ऑफ द हेवी साइड ब्रिज. इसमें हमको 4 आर्म्स ए बी बी सी सी डी और ए डी, यहाँ पर हमको 4 आर्म्स दिखाई हुई हैं. दीज आर द ए बी बी सी
CD and AD. These are the four arms which we are seeing here. तो M is the unknown mutual inductance. यहाँ पर जो टर्म M है that is the unknown mutual inductance को indicate कर रहा है, and L1 is the self inductance of the secondary of the mutual inductance. यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो सपोज ये यहाँ पर कोई है, इसका L है, तो इसका सेकेंडरी इज द L1 और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल इज M. तो वी कैन डिनोट इट लाइक दिस, एंड L2 इज द नोन सेल्फ इंडक्टेंस. L2 की जो वैल्यू है यहाँ पर जो हमने ली है दैट इज द नोन वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस की. R1, R2, R3, R4 नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स. ये हमारे R1 जो हमारा यूज हो रहा है, R2 यूज हो रहा है, R3, R4 ये हमारे रेजिस्टेंस हैं. तो बैलेंस वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द B एंड C मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन D एंड C. तो B एंड C बैलेंस कंडीशन में जो B और C के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज हमने दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप इज द E3, तो दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन D एंड C के बीच में अगर हम वोल्टेज ड्रॉप है दैट वी कंसीडर द E4, देन इट विल बी इक्वल, ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप बराबर होंगे. तो इस कंडीशन में वी कैन से एट बैलेंस following equation will occur. I1 R3 that is the voltage drop in this arm. इस आर्म में हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा B और C के बीच में वो हमारा R3 I1 होगा. तो I1 R3 का मल्टीप्लाइड इजकल टू I2 R4, दैट विल बी द C और D के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R4 होगा. इनको हमने इक्वल हमने यहाँ पर दोनों को लिख दिया, दे विल बी इक्वल. नाउ व्हाट विल हैपन, द वोल्टेज ड्रॉप across ABC मस्ट इक्वल द वोल्टेज ड्रॉप across ADC. तो ABC जो हमारे ये पॉइंट हैं A, B और C, B ये रहा हमारा, C और A, तो इस आर्म्स में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा ADC इस आर्म में वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं. तो दैट इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज हेयर. अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज करते हैं तो वी कैन राइट इट दैट फर्स्ट व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप एट ABC. तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस M दे रखा है हमको. करंट इज I1 इस AC सोर्स की वजह से जो हमारा करंट आ रहा है दैट इज I1 प्लस I2. तो I1 प्लस I2 इज मल्टीप्लाइड बाई j ओमेगा M, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्लस देन I1 R1 प्लस R3 प्लस j ओमेगा L1, that is the I1 totally flowing in this circuit, that will be the R1 R3 और j ओमेगा L1. तो we can write it इक्वल टू जो हमारी जो बॉटम वाली आर्म थी इसमें जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी द A, D और C के बीच में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी द R2 प्लस R4 प्लस j ओमेगा L2 से शो किया हुआ है. तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द सेकंड. बाय द पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से I1 की जो वैल्यू होगी R4 अपॉन R3 इंटू I2, दैट हम इसको सेकंड में पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं देन इट विल बी j ओमेगा
एम आई वन, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस आई टू जे ओमेगा एम, आई टू जे ओमेगा एम आई टू, प्लस अब हम यहाँ वैल्यू जब आई टू की पुट करते हैं, आई वन की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं, आर फोर अपॉन आर थ्री आई टू, देन यहाँ पर भी हम आई वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में जनरेट हो जाती है, दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड को आई टू से डिवाइड करने पर हमारे पास जो आता है दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ये, सेकंड हमारे पास आर फोर अपॉन आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री, प्लस हमने इसको वापस से इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू दिस टर्म। अब हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। इफ वी कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, तो रियल पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, आर फोर अपॉन आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री, देन हियर इज द रियल पार्ट इज आर टू प्लस आर फोर, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया आर फोर अपॉन आर थ्री आर वन, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आर फोर इक्वल टू दिस, तो हमारे पास जो आर वन की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द आर टू, आर फोर से आर फोर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और आर टू आर थ्री अपॉन आर फोर, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर फोर। इमेजिनरी पार्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये टर्म, अब हमारे पास रियल टर्म को हम डिलीट कर देते हैं, और हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स ये वाली टर्म्स है, ये टर्म्स है और ये टर्म्स हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तीनों टर्म्स में, और इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द एम की वैल्यू, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द above equation that L1, the self-inductance of the secondary of the mutual inductor must be known in order that M be measured। अगर M को हमको मेजर करना है तो L2 के साथ साथ हमको L1 की वैल्यू भी पता होना चाहिए। हमने पहले ही ले लिया था कि L2 नोन है, और that we can do with the heavy side bridge। इन केस R3 इक्वल टू R4 अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास M की वैल्यू ये वाली हमारे पास आ जाती है। If we want to determine the self inductance, then L2 इक्वल टू 2M प्लस L1 से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम अब हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि I1R1, तो हमने ये फेजर I1R1 ये हमने यहाँ पर ले लिया, दैट इज द I1R1। इसी तरह से I1R3 ये हमारे पास I1R3 हमने इंडिकेट कर दिया, दो एक ही करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, तो हमने यहाँ पर इसको दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। देन I1R1 इसी तरह से हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं I2R2। अगर हमारे पास I2 और R2 और I2R4 ये भी हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर इन वेक्टर्स को। देन I1 ओमेगा L1 और I1 प्लस I2 ओमेगा M, ये हमारा टोटल फर्स्ट आर्म का इंडक्टेंस बना रहा है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि लीड लिए हुए होता है इंडक्टेंस, तो हमने इस ये दैट इज द I1R1 और ये इंडक्टेंस और ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप दैट इज मेकिंग द कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप E1, ये हमारा E1 को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से I2R2 और I2 ओमेगा L2 मिलकर भी ये हमारा E2 को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को। और फिर हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर हमारे पास E1 है और ये E3 है यहाँ पर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द E।
रिजल्टेंट विल बी ई, क्योंकि हमारे पास जो E1 और E3 होगा, ये हमारे पास E1 है, दैट इज E1, दैट इज E3, इनका रिजल्टेंट है, दैट विल बी द E, दैट इज shown by this vector. So that is the phasor diagram of the Heaviside bridge. So we have seen the Heaviside bridge balance equation, Heaviside bridge phasor diagram. Thank you very much.